بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اقرا اردو کے ساتھ آج ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کتاب اقرا اردو صفحہ نمبر 29 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لہٰذا آپ بھی مذکورہ صفحہ فوراً سامنے رکھیے۔ کتاب ہے اقرا اردو، جس کا صفحہ نمبر 29 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 29۔ جی بیٹا، جلدی سے کتاب کھول لیجئے، شاباش۔ امید ہے کتاب آپ کے سامنے ہوگی اس وقت۔ صفحہ نمبر 29۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ضدی حروف۔ عنوان کیا ہے؟ ضدی حروف، یعنی وہ حروف جو ضدی ہیں، ضد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون سے حروف ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کل 9 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں، جنہیں آپ نے آج اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ کل 9 حروف ہیں جن کو اردو کے ضدی حروف کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو، ٹھیک ہے۔ کتنے حروف ہوئے یہ بیٹا؟ یہ کل 9 حروف ہوئے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو۔ 9 حروف ہیں جن کو ضدی حروف کہا جاتا ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ان کو اور مختصر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ آپ ان حروف کو اس طرز پہ بھی یاد کر سکتے ہیں جس طرز پہ میں بتانے لگا ہوں۔ 9 حروف ہیں جن کو ضدی حروف کہا جاتا ہے۔ وہ 9 حروف یہ ہیں: الف، دال کا خاندان، رے کا خاندان، واو، ٹھیک ہے۔ اب کتنا آسان ہوا بیٹا؟ الف، دال کا خاندان، رے کا خاندان، واو، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ الف، دال کا خاندان، یعنی دال کے خاندان میں جو حروف ہیں ڈال، دال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رے کا خاندان، رے کے خاندان میں جو 4 حروف ہیں رے، ڑے، زے، ژے، ٹھیک ہے، اور واو۔ کل 9 حروف ہوئے جن کو ضدی حروف کہا جاتا ہے۔ آج کا یہ قاعدہ انہی 9 حروف کے متعلق ہے۔ کیا ہے قاعدہ؟ میں قاعدہ پڑھنے جا رہا ہوں بیٹا۔ انگلی رکھ لیجئے کتاب پر، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے حروف تہجی میں کل 9 حروف ایسے ہیں، کل 9 حروف ایسے ہیں جو لفظ میں اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر لکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں، دیکھیے ذرا۔ اردو کے حروف تہجی میں کل 9 حروف ایسے ہیں جو لفظ میں اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر لکھے جا سکتے ہیں، اور وہ کل 9 حروف کون کون سے ہیں جو یہاں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو لفظ میں اپنے سے پہلے والے حرف سے تو مل سکتے ہیں، لیکن یہ حروف اپنے بعد والے حرف سے ملا کر نہیں لکھے جاتے۔ یہ ہے قاعدہ، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ اردو کے حروف تہجی میں کل 9 حروف ایسے ہیں جو لفظ میں اپنے سے پہلے والے حرف سے تو ملا کر لکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ حروف اپنے بعد والے حرف سے ملا کر نہیں لکھے جا سکتے، کبھی بھی نہیں لکھے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے ان کو ضدی حروف کہا جاتا ہے کہ یہ ضدی ہیں۔ یہ ایسے حروف ہیں جو ضد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پہلے والے کے ساتھ تو دوستی کریں گے لیکن اپنے بعد آنے والے کسی حرف کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ان کو ضدی حروف کہنے کی وجہ، ٹھیک ہے۔ جیسے الف، جیسے الف اپنے ماں قبل سے، لفظ کیا ہے؟ اپنے ماں قبل سے ملا کر لکھا جاتا ہے۔ ماں قبل کا مطلب کیا ہے؟ ماں قبل کا مطلب ہے پہلے والا،
यानी अपने पहले वाले हर्फ से मिलाकर तो लिखा जा सकता है, ठीक है। अलिफ अपने माक़बल से यानी अपने पहले आने वाले हर्फ से मिलाकर तो लिखा जा सकता है या जाता है, जैसे बे अलिफ बा। अब देखिए अलिफ से पहले बा है तो अलिफ बे के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह जीम अलिफ जा, अलिफ से पहले जीम है तो अलिफ जीम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अपने बाद आने वाले हर्फ से अलग लिखा जाता है, मिलाकर नहीं लिखा जाता, जैसे इंसान। अब देखिए इंसान में आपको दो अलिफ नज़र आ रहे हैं। एक अलिफ वो है जिसके बाद नून आया है और एक अलिफ वो है जिससे पहले सीन आया है, ठीक है। अब देखिए, अब वो अलिफ जिसके बाद कोई हर्फ आया है वो किसी के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन वो अलिफ जिससे पहले कोई हर्फ आया है वो आपको जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अमरूद में देखिए अलिफ के बाद मीम आया है, नहीं जुड़ा, लेकिन इंसान में अलिफ से पहले सीन आया है तो ये वाला दूसरा अलिफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर वज़ाहत कर दूँ, उर्दू ज़बान के 9 हरूफ हैं जो ज़िद्दी हरूफ कहलाते हैं, और ज़िद्दी हरूफ इसलिए कहलाते हैं कि ये हरूफ अपने पहले आने वाले हर्फ के साथ तो जुड़ते हैं लेकिन अपने बाद आने वाले हर्फ के साथ कभी नहीं जुड़ते, हमेशा अलग से लिखे जाते हैं। यानी अपने बाद आने वाले किसी हर्फ के साथ मिलाकर नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। ऐसे हरूफ ज़िद्दी हरूफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज़िद्दी हरूफ कहलाते हैं। दरअसल आप हमेशा के लिए इन्हें याद रखें, इसीलिए इनको इस तरह का उन्वान दिया गया है ताकि आपको याद रहे। इन्हें उर्दू के 9 रतन भी कहा जाता है, उर्दू के 9 रतन भी कहा जाता है। 9 रतन का मतलब क्या है? 9 रतन का मतलब है 9 मोती, ठीक है, या 9 जवाहरात। आप 9 जवाहरात भी कर सकते हो और 9 कीमती मोती भी कह सकते हो। दरअसल मशहूर है कि जवाहरात की 9 अक़साम हैं, जैसे हीरा, मोती, नीलम, पखराज, ज़मरुद, याकूत। तो ये जो मशहूर 9 जवाहरात हैं इनको 9 रतन कहा जाता है। चूँकि ये भी तादाद में 9 हैं इसलिए इनको भी 9 रतन कहा गया है। उम्मीद है कि आप कायदा अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ठीक है। मैं कायदे की मुख्तसरन एक दफ़ा फिर वज़ाहत कर दूं। उर्दू ज़बान के 9 हरूफ ऐसे हैं जो अपने पहले आने वाले हर्फ से तो मिलाकर लिखे जा सकते हैं लेकिन अपने बाद आने वाले हर्फ के साथ नहीं मिला के लिखे जा सकते, ठीक है। वो 9 हरूफ कौन से हैं? वो 9 हरूफ ये हैं अलिफ, दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान और वाव, ठीक है बेटा। उम्मीद है आप कायदा अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अमली किताब की जानिब बढ़ते हैं। जी बेटा, अमली किताब सफ़ा नंबर 24 देखिए। सफ़ा नंबर 24 पर आपको ज़िद्दी हरूफ से मुताल्लिक़ काम दिया गया है जिसकी आज आपने तकमील करनी है, ठीक है। मैं थोड़ी सी वजाहत इसके मुताल्लिक़ कर देता हूँ। कायदा तो आप अच्छी तरह बखूबी समझ चुके होंगे। अब आपने इसी कायदे के मुताबिक इन्हीं हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ की शक्ल में तहरीर करना है, ठीक है। ऊपर यही कायदा दोबारा वाज़े किया गया है, ठीक है। यहाँ एक और बात इजाफी तौर पर जो लिखी गई है वो ये है कि ज़िद्दी हरूफ के साथ साथ इनको शरारती हरूफ भी कहा गया है। शरारती हरूफ, ठीक है, वो हरूफ जो शरारत करते हैं, अपने से पहले आने वाले हर्फ के साथ तो दोस्ती करते हैं लेकिन अपने बाद आने वाले किसी हर्फ के साथ दोस्ती नहीं करते, ठीक है। यहाँ आपको कुछ हरूफ दिए गए हैं जो आपने इस कायदे के मुताबिक आपस में जोड़कर लफ्ज़ की शक्ल में लिखने हैं। जैसे देखिए, रे सीन वाव मीम अलिफ ते, क्या बना लफ्ज़ बेटा? जोड़िए, शाबाश जी, रसूमात, ठीक है, रसूमात।
रस्म की जमा रसूमात। आप देख रहे हैं बेटा, अब रे के बाद सीन आ रहा है, रे उसके साथ नहीं जुड़ी, लेकिन वाव से पहले सीन आ रहा है तो वाव उसके साथ जुड़ चुका। इसी तरह देखिए मीम अलिफ मा में, अलिफ को देखिए, अलिफ से पहले मीम आया तो अलिफ उसके साथ जुड़ गया, लेकिन उसके बाद ते आई तो अलिफ उसके साथ नहीं जुड़ा। देख रहे हैं, ठीक है। इस तर्ज पर आपने ये काम मुकम्मल करना है। एक और लफ्ज़ लिख लेते हैं, ज़ख़ीरा। देख रहे हैं। इसी तर्ज पर एक और लफ्ज़ यहाँ लिख लेते हैं, अलिफ आइन जीम अलिफ जा और जे। अब अलिफ को देखिए कि अपने बाद वाले हर्फ के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन अपने पहले आने वाले हर्फ के साथ जुड़ गया। देख रहे हैं। इसी तरह जे को भी देख लीजिए, ठीक है, एजाज। इसी तर्ज पर आपने ये काम आज का मुकम्मल करना है। न सिर्फ आपने कायदा नंबर 9 याद करना है, बल्कि इसी कायदे के मुताबिक आज आपने अमली किताब का सफ़ा नंबर 24 मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।